So pivot table, what is pivot table? What Excel says, what pivot table is expected to do. Pivot table is summarizing the entire data, number one. And pivot table makes it easy to arrange and summarize. It means the data can be arranged in some meaningful manner, some required form, and it can be summarized and arrange complicated data. Here, what the complicated means, if you have a data like 50,000 row, 1 lakh row, 2 lakhs row, 5,000 columns. So how you arrange that much complicated information, that much big information, and to find some meaningful details. So to understand this thing, I have this data with me. I think this data is, how many size the data is? Very big. It is like, how many rows? 712. 712 rows are there. 712 rows are there. And 1, 2, 3, 4, 5, 6 columns are there. So you can multiply 712 and 6 columns. So that much data we have today. And not only an issue, if you perform on this particular small set of data, that is only 700 data, then you can perform it on 7,000, 700 lakhs, and any other kind of, any other volume of data you can play with it. So first I am deleting it. Yes. So see my steps. If you are performing it, do it with me. First of all, we need to select this particular table. So first of all, we need to select this particular table. Either you select like this using mouse, but you need to scroll it down a number of times. And if the data is very big, then you need to scroll it maybe for a minute or for a few seconds. So one thing is, first of all, you need to select it. And if the data is very big, it is recommended that you should click anywhere in the table, and press Control A. Press Control A. Click anywhere in the table and press Control A. If you are doing it, you can see how it is easy. It is doing? Yes, sir. So it is very simple shortcut key. It is a very simple shortcut key to select a particular table, whether it is having lakhs number of row, 1,000 number of rows. You can select in one single click, that is Control A. So first of all, you need to select this particular table and then click on pivot table here. Home insert के बाद है pivot table. इस पर हम क्लिक करने जा रहे हैं. ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं. There are few tasks that I have written here, like how much amount is deposited. The data is like this. It is a data of September month, from 1st September to 3rd, 4th, 29th September. All the informations are arranged date wise also. Amount of transaction, account type. There are different types of accounts. Current deficit, IRA. There may be certain kind of account, savings, checking. Opened by new account or a teller account. Branch कहाँ पर है वो लिखा है. Customer existing है या new है ये लिखा है. So maybe this is a kind of dummy data, and we are expected to find out these many information using this data. It is like you are doing some programming over it, like how much account is deposited by new and existing customer. How much account is deposited by new and existing customer. If you using filter in MS Excel, अगर आप filter use करते हैं तो filter यहाँ होता है, इधर देखिए ये sorts and filter. Click on filter and then click on here new. Then only you can arrange this particular thing. But this takes a lot of time. This takes a very not generated any summarized report. And because the report is to be summarized and to be submitted to your boss, to your company in terms of document, so that they can take some decision over it. लेकिन एक्सेल में ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर ना बहुत recommended नहीं है for a large amount of data, so we should not use it. We'll remove it. Yes. So
This data is there. Second is amount deposited by account type. किस account type में कितना amount deposit हुआ ये हमें पता लगाना है. Amount deposited and account opening. ठीक है, opened by किस account में कितना, जिससे जहां से जिस पैटर्न से ओपन किया है, either न्यू अकाउंट और टेलर अकाउंट. डेट वाइज अमाउंट के 1 सितंबर को कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ, सेकंड को कितना हुआ, डेट वाइज अमाउंट डिपॉजिटेड. ब्रांच एंड कस्टमर वाइज डेटा, ब्रांच एंड अकाउंट टाइप वाइज डेटा, किस ब्रांच में कितने कस्टमर न्यू है, कितने एग्जिस्टिंग है. सो देयर आर नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी समराइज्ड यूजिंग दिस पर्टिकुलर डेटा ओनली. Although there are number of things are there in Excel like find and replace, sort and filter, sorting, वो सब सारी चीजें हैं, but वो अलग अलग टूल है. But here in MS Excel we can jointly use these tool as a programming as a program manager to summarize our data. So let's start with it. First of all, select the table, Control A, clear, and go to this insert tab. In insert tab, the first option is pivot table. Click on pivot table. If you are doing with me, then do it. Click on pivot table. Then this type of dialog box opens. So let's see what is asking to us. It is asking select the table range. Select the table range. By default, because the table is already selected by as Control A, we have done it. So by default, it is showing me the range. Range is like bank data. आपके में अगर फाइल का नाम, अगर टैब का नाम नहीं होगा तो कुछ और लिखा होगा, like लिखा होगा sheet 2 या sheet 1, and the range. Clear? And you can see these dancing lines. These dancing lines are around the table. And now it is asking us choose where you want to put your pivot table report, whether in this sheet only, existing sheet, or whether you want to output in the new sheet. So I don't want to disturb my existing sheet. So I click on new worksheet and then click OK. अगर आप इसी पे देखना चाहते हैं एग्जिस्टिंग पर, तो एग्जिस्टिंग पे क्लिक करते हैं और लोकेशन दे देते हैं, जैसे एक यहाँ पर दे दिया, तो वो आउटपुट इधर ही दे देगा हमें. लेकिन आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दिस पर्टिकुलर शीट, तो आई क्लिक ऑन न्यू वर्कशीट. ओके, एंड क्लिक ओके. As soon as you click OK, there is one sheet automatically inserted before this particular sheet. Is it done? दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So it's like this particular box here. Pivot table number होगा कोई 1, 2, 3 whatever. To build a report, choose field from the table. Field list. This is the field list. On the right, on your right hand side, this is called pivot table field list. We have these many fields. Date, amount, type. 6 fields थे हमारे पास. Date, amount, account type opened by. All these 6 fields is being shown in this particular box, pivot table field list. Click. अच्छा, ये जो शीट है, इस शीट में अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया पे क्लिक रखेंगे, फ्रॉम A3 टू C20, यहां से लेकर यहां तक मैं कहीं भी क्लिक रखूं तो मुझे ये राइट साइड में फील्ड लिस्ट दिखाई देगी. एंड एज सुन एज आई क्लिक एनीवेयर इन दिस टेबल, इन दिस पर्टिकुलर शीट, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया या कहीं भी क्लिक कर दिया इसके अलावा, तो वो राइट साइड से वो पैन गायब हो जाएगा. ठीक है, तो if you want to use it, then you should click, your pointer should be clicked in this space only, तभी वो आपको राइट साइड पे दिखाई देगा. आप शायद करके देख पा रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि as soon as you click outside this box, this table list is being removed and you come back in this table, so you will be having these particular lists. So as many as column you have, as many as records you have, all the column headers would be displayed here. 5 कॉलम हो, 6 हो, 50 हो, 100 हो, जितने भी हो वो सब आपको यहाँ दिखाई देंगे. ठीक है. My first task is how much amount is deposited by new and existing customer. New and existing customer. Okay, so I click on new and existing customer. कहाँ पर है? Customer heading में है. Customer heading and amount. देखिए, हमने ना कोई फिल्टर लगाया ना कुछ किया, just click
टू थिंग्स, कस्टमर एंड अकाउंट। कर पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो दिस मैनी अमाउंट, दिस मच अमाउंट जो भी है, ये इतना अमाउंट डिपॉजिट किया एक्सिस्टिंग कस्टमर ने, इतना अमाउंट डिपॉजिट किया न्यू कस्टमर ने, एंड दैट इज ग्रैंड टोटल। ठीक है, सर सम अमाउंट नहीं शो हो रहा है, क्या नहीं शो हो रहा है? सम नहीं शो हो रहा है, सम ऑफ अमाउंट। यस सर। ग्रैंड टोटल। हाँ, अच्छा, ये एक काम तीनों करिए अमाउंट नहीं सर, शो हो रहे हैं, ओनली फॉर एग्जैक्टिंग एंड न्यू एंड ग्रैंड टोटल, बस ये आ रहा है, पर डिजिट नहीं आ रहा है एक भी। ये जहाँ मेरा काउंट है ये 653, ये नहीं दिखाई दे रहा? ये भी नहीं आ रहा, ऊपर वाला अमाउंट भी नहीं आ रहा, 43 वाला, और अच्छा, सम ये ऑफ भी नहीं आ रहा। अमाउंट वाला भी नहीं आ रहा, कोई और बात 127 अभी वाला मैं भी नहीं आ आपको एक काम करो, उसे हटा देता हूँ मैं, ठीक है? आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो एक काम करना, ऐसे करना, कस्टमर को कॉलम में, कस्टमर को ऐसे ना पकड़ के ऐसे ड्रैग करके कॉलम में डाल दो, ठीक है, या रो में डाल दो, चलो ठीक है। और अमाउंट को ऐसे खींच के जैसे मैं खींच रहा हूं, उठा के वैल्यू में डाल दो। अब देखो, ये सर शो हो रहा है ना? कई बार वो भेज देता है, तो चलो अच्छा हुआ आपने ये पूछ भी लिया, तो मेरे को ये बताने को भी मिल गया कि since you know every table is having three important attributes, one is row, another one is column, and the third one is the data between rows and columns। ठीक है, किसी भी टेबल में मोटा मोटा तीन चीजें होती हैं, either it is first is rows जो कि आपके ऐसे चलते हैं, then columns, and then the amount or the values that is written between table rows and columns। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर ना वो टेबल बनाने के लिए एक 4 बॉक्स देता है। फर्स्ट बॉक्स कॉलम के लिए, ये मेरा जहाँ माउस है वो आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट बॉक्स कॉलम के लिए है, फिर रो के लिए है, फिर बिटवीन वैल्यूज के लिए है, ठीक है, और एक रिपोर्ट फिल्टर भी है, वो मैं अभी बताता हूँ। तो अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लीजिए। अगर देखिए, अगर आपको चाहिए कि डेटा ना मेरे को न्यू और एग्जिस्टिंग, मेरे को रो में अच्छा नहीं लग रहा, आई शुड वांट टू पुट इट इन column, so click here and drag the customer and drop it here in this column sheet। So now you can see, you can actually restructuring your table। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है, if you want to put it in a row, in your column, वो आप यहाँ रख सकते हैं। चलिए, कॉलम में अच्छा लग रहा है, रो में अच्छा लग रहा है, तो रो पे रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और मैं चीज आपको दिखाता हूँ। दिस इज द डेटा ऑफ this is the sum of amount deposited by existing and new customer। okay, ये जो टोटल अमाउंट है कितना है हमारा, जो भी है ये 653 वाला, एक बार देखते हैं कि टोटल सारा हमारे पास आ गया नहीं आ गया है। तो आई वांट टू सी द टोटल ऑफ अमाउंट। टोटल ऑफ अमाउंट इज, यही है ना वो टोटल जो आ रहा है, देखिए, Yes, sir. है ना? Yes, sir. इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, और वो सारा अमाउंट उसी को एक्जेक्टली ले देता है। ओके, जस्ट डू वन थिंग, क्लिक एनीवेयर, क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर, डबल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर सेल B4, डबल क्लिक। क्या हुआ डबल क्लिक करके? डबल क्लिक किया आपने इस पर, सर टेबल आ गई, ओपन हो गई। एक नई टेबल आ गई है, ये वाली। यस, एग्जैक्टली। यस सर। यस सर। हाँ, बिकॉज what is this? बिकॉज somebody ask you, भाई ये न्यू का एग्जिस्टिंग का तो डेटा है, लेकिन डिटेल नहीं है हमारे पास। आपका बॉस कहता है कि भाई ये आपने लाके तो दे दिया मेरे को कि सम एग्जिस्टिंग लोगों ने इतना अमाउंट डिपॉजिट किया है, न्यू ने इतना डिपॉजिट किया, ये है कौन जिन्होंने डिपॉजिट किया है, मुझे उनकी लिस्ट चाहिए। आप गए, यार ये तो टोटल तो आ गया, इसकी लिस्ट का है, वो कौन है लोग जिन्होंने डिपॉजिट किया है, उनकी डिटेल क्या है। तो नो नीड टू वरी, as soon as you double click on any of this data, you will have a new sheet with you। अब ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने ये 436872 वाला जो अमाउंट है वो आपको दिया है। ये देखिए, ये सब एग्जिस्टिंग वाले। Excuse me, sir. यस,
सर मेरे जो डेट्स वाली कॉलम है उसमें हैश आ रहा है पूरा। कोई बात नहीं, आप ऐसे आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दो, ऐसे खींच के, ओके ऐसे। सर। सर मेरे देखो में भी आ रहा है। देखो ऐसे करोगे ना, ये आप छोटा कर दोगे ना इसको, तो ये गायब हो जाएगा, ऐसे आएगा। तो इसका साइज ना थोड़ा बड़ा कर दो, ऐसे हो गया सर। वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, दैट इज नॉट ए बिग इशू। ओके, तो so this is the pivot table, and if you want to have separate report on over it, इसे मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया, यस। अब मेरे पास वो पुरानी वाली टेबल है। इफ आई डबल क्लिक ऑन दिस न्यू, तो मेरे को ये न्यू वाले कस्टमर का डेटा दिखता है। देखिए सब न्यू है, यहाँ पर कस्टमर टाइप में सब न्यू है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये तो पता लग गया कि न्यू और एग्जिस्टिंग में कितना दिया है। एंड इफ यू वांट टू सी फर्दर द डिटेल ऑफ दोज कस्टमर्स, सो यू कैन हैव अ डॉक्यूमेंट बाय जस्ट डबल क्लिकिंग ओवर इट, ठीक है। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, नहीं तो ऐसे बहुत सारी शीट मेरे पास आ जाएंगी इकट्ठी होके। ओके, नेक्स्ट टास्क नंबर 2। नंबर 2, अमाउंट डिपॉजिटेड एंड अकाउंट टाइप। किस अकाउंट टाइप में कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, IRA में कितना हुआ है, CD में कितना हुआ है, चेकिंग में कितना हुआ है, सेविंग्स में कितना हुआ है, मेरे को डिटेल इस तरह से चाहिए, ठीक है। आई थिंक नाउ यू कैन डू इट। गो बैक टू योर शीट एंड क्या था डेटा, अमाउंट एंड अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप इज दिस, फर्स्ट टू रिमूव दिस थिंग, अकाउंट टाइप रो में ले जाइए, अमाउंट को वैल्यू में ले जाइए। देखिए हो पा रहा है, हो रहा है, यस सर। है ना। अकाउंट टाइप एंड अमाउंट, ठीक है। अगेन वही सेम चीज, इफ यू वांट टू डिटेल, इफ यू वांट टू गेट डिटेल ऑफ दोज कस्टमर्स डिपॉजिटिंग अमाउंट अंडर CD कैटेगरी, अकाउंट टाइप CD, तो आप डबल क्लिक करेंगे, आपको ये डेटा मिल जाएगा जिन्होंने CD अकाउंट टाइप में डिपॉजिट किया है। यस यस सर। कर पा रहे हैं, है ना। यस सर। So this is the total amount deposited that is being divided into different categories. The category is account type. चलिए और देखते हैं, अभी तो काफी चीजें करनी है। Next is amount deposited and account opening. Account opened by this. चलिए तो account opened by, यहाँ से हटाया, opened by को इधर डाला, तो न्यू और टेलर अकाउंट में कितना कितना डिपॉजिट हुआ है वो भी आ जाएगा। डबल क्लिक करेंगे, डिटेल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ हमारा फोकस था अकाउंट, न्यू अकाउंट वालों ने कितना डिपॉजिट किया है। बताइए कर पा रहे हैं। यस सर। ओके, चलिए और देखते हैं आगे। सिमिलरली डेट वाइज अमाउंट डिपॉजिट, किस डेट में कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, किस डेट में कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, तो वापस इसको यहाँ ले जाते हैं, डेट को इधर ले आते हैं। तो देखिए डेट वाइज 1 सितंबर को, ऑल्दो 1 सितंबर में देखिए कितनी वैल्यूज हैं, ये सब वैल्यूज हैं, ये यहाँ तक, this much amount is being deposited on the single day, that is 1 September। किस किसने किया है वो सब डिटेल है, और ये पूरा टोटल आ गया कि 1 सितंबर में कितना डिपॉजिट हुआ। सिमिलरली 2 सितंबर में कितना डिपॉजिट हुआ, ठीक है, और 29 सितंबर तक एंड टोटल। सो दिस इज डेट वाइज डिपॉजिट। एंड अगेन इफ यू वांट टू सी मोर डिटेल अबाउट इट, डबल क्लिक हियर, you will see the data which is on 1 September itself।
Yes, it is running. Yes. ओके, आगे देखते हैं ब्रांच एंड कस्टमर वाइज डेटा, ब्रांच एंड अकाउंट टाइप डेटा। ब्रांच, अब मुझे अमाउंट से कुछ नहीं करना है, ब्रांच एंड कस्टमर। अब देखिए, जैसे अभी विभूति बता रहे थे कि भाई ब्रांच और कस्टमर मैंने सेलेक्ट कर लिए, ब्रांच ले लिया रो में, ब्रांचेस हैं, ये है ना ब्रांचेस, सेंट्रल, नॉर्थ काउंटी, वेस्ट साइड, तो ऑल दीज ब्रांचेस इज डिस्प्लेड ऑन द रो साइड, एंड कस्टमर दैट इज न्यू एंड एग्जिस्टिंग वो इधर आ गया, लेकिन अभी वैल्यू नहीं आई है, टेबल तो तैयार है लेकिन वैल्यू नहीं है। अब वैल्यू में आपको क्या चाहिए, वैल्यू में चाहिए मुझे अमाउंट, तो अमाउंट को ड्रैग करके वैल्यू में डाल देंगे, अमाउंट को ड्रैग करके वैल्यू में ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो किस ब्रांच में कितना डेटा न्यू का है, कितना एग्जिस्टिंग का है, वो सब आपको यहां दिख जाता है, ठीक है। Yes, sir. कर पा रहे हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, यहाँ पर ही मेरा एक टास्क है, मैं ये एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, या हम उसको करेंगे अभी। आई वॉन्ट टू सी दैट हाउ मेनी एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर्स आर देयर इन दीज ब्रांचेस। सेंट्रल ब्रांच में कितने नए और कितने एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, ये तो आ गया अमाउंट है, दिस इज सम ऑफ अमाउंट deposited by new and existing customer in central branch. I want to see how many account holders are there in this particular branch. Central branch में कितने new और कितने existing customer हैं, बात समझ में आ रही मेरी? I don't want to see the amount deposited by new and existing customer. I want to see how much new and existing customer are there in central branch, in west side branch and in north county branch. तो देखिए जरा ध्यान से इधर देखेंगे, मेरे को फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पर वैल्यूज है ना, कस्टमर ऑन कॉलम एंड ब्रांच ऑन रो, यहाँ इधर आ जाइए वैल्यू पर, यहाँ लिखा है सम ऑफ अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट। तो मुझे यहाँ पर सम ऑफ अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए कस्टमर। देखिए काउंट ऑफ कस्टमर आ गया, Are you getting me? Yes, sir. करके देखा होगा शायद आपने, हो पा रहा होगा। The Yes, change sir. is I don't want to see the sum of amount, I want to see number of customers. So you can see total कितने कस्टमर थे, अब मैंने आपको शुरू में दिखाया था 712, and these 712 customer is now divided branch wise और कस्टमर वाइज। तो सेंट्रल ब्रांच में 362 अकाउंट होल्डर हैं, जिसमें कि 239 एग्जिस्टिंग है और 123 न्यू है। Similarly in other branches also. So this value is very important. You can click over it and value field setting में जाकर देखिए एक बार, यहाँ पर आप यहाँ पे when you click on this particular side, click here, तो आता है कि value field setting, value field setting। तो value field setting पे क्लिक करेंगे तो whatever function you want to apply here, sum, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, वो फंक्शन भी लगा सकते हैं यहाँ पर। दैट वी आर डूइंग इट। अर्लियर वी पुट इट हियर सम ऑफ अमाउंट, नाउ वी आर गेटिंग हियर इट काउंट ऑफ कस्टमर्स, तो वो भी आ सकता है। यू कैन चेंज इट हियर, यू वांट टू एवरेज, यू वांट टू सी द एवरेज, यस एवरेज, अमाउंट पे एवरेज आएगा तो इस पे आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पर एवरेज करना चाहते हैं तो एवरेज भी आ जाएगा, कितना एवरेज डिपॉजिट आ रहा है, समझे मेरी बात? कितना एवरेज डिपॉजिट आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन डू नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हेयर एंड
exactly what kind of table you want to see, in what headers you want to put it on column, how many headers you want to put it on rows, what values you want to see in middle, sum, count, average, whatever. So that can be put it in this particular table. And if you want to, at any point of time, if you want to see more detail about any information, you just need to double click over it. Just need to double click over it, and you have the full detail of that particular thing. बताइए, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Okay. Now, moving further. If any moment of time I want to resize, I want to you can say, yes, I want to extend my table, or I want to delete my table, I want to resize my table, I want to add one more field here like age. ठीक, मुझे यहाँ पर एज करके एक कॉलम डालना है. ठीक है, अब मुझे ये सारा कुछ एज भरना पड़ेगा. तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं. आई जस्ट वांट टू हैव रैंडम वैल्यूज. Yes, now my table is ready. Yes, and done. Now I have added one more column here. आपने देखा मैंने कैसे ऐड किया? Hello. Sir, please repeat it. नहीं, एक्चुअली आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस थिंग हियर. मैं एक्चुअली यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना चाह रहा था, और मुझे इतनी सारी डेटा फिल करना चाहिए पड़ रहा, इसलिए मैंने जल्दी से एक फंक्शन लगा दिया दैट इज कॉल्ड रैंड बिटवीन. तो रैंड बिटवीन से क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी रैंडम वैल्यू वो डाल देगा, कोई भी रैंडम वैल्यू वो यहाँ पर डाल देगा बिटवीन 18 to 60. जैसे देखिए मैंने फंक्शन जो लगाया था वो था इक्वल्स टू रैंड बिटवीन 18, 60. ये मैंने यूज किया था, इक्वल्स टू रैंड बिटवीन 18, 60. मतलब आई वांट टू हैव सम रैंडम वैल्यू बिटवीन 18 and 60. रैंडम मतलब रैंडम, मुझे नहीं डिसाइड करना, कंप्यूटर डिसाइड करे, कोई भी वैल्यू यहाँ मुझे दे दे. तो जैसे मैंने क्लिक किया वो मुझे कोई एक वैल्यू दे देता है, और आपको जितनी भी वैल्यू चाहिए वो ड्रैग करते जाओ आप. तो 18 और 60 के बीच में वो कोई भी वैल्यू आपको देता है. ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट है इफ यू वांट टू हैव सम वैल्यू एंड आई डोंट हैव अ टाइम. मैं पूरी क्लास में यही एंटर करता रहता वैल्यू, तो पूरी क्लास निकल जाती. तो दिस इज अ शॉर्टकट, वी कैन यूज इट एनी रैंडम वैल्यू. आया समझ में? यस सर. Yes, sir. चलिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. नाउ आई एम हैविंग वन मोर कॉलम एज एज. अब मैं वापस पिवट टेबल पे जाता हूँ, तो अभी एज यहाँ नहीं आया है. देखिए कस्टमर के बाद एज यहाँ नहीं है, जो कि मैंने अभी ऐड किया है. ठीक है, एज यहाँ पर नहीं है. तो उसके लिए मुझे क्या करना है? अच्छा, एक चीज़ और, जब भी आप टेबल पे क्लिक करते हैं ना यहाँ पर, तो आपको दो ऑप्शन, देखिए यहाँ पे व्यू तक है, होम, इंसर्ट, पेज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू. स्टॉप, व्यू के बाद कुछ नहीं है. बट एज सुन एज आई क्लिक ऑन दिस टेबल, तो यहाँ दो ऑप्शन और दिखने लग जाते हैं, दैट इज ऑप्शन एंड डिजाइन. और ऊपर लिखा है पिवोट टेबल टूल्स, बिकॉज दीज टूल्स आर रिलेटेड टू पिवोट टेबल, that is only highlighted when the table is being selected. So option and design, option and design दिख रहा है आपको? हाँ जी, ये तभी दिखेंगे जब आपका सिलेक्शन किसी टेबल पर होगा, टेबल के बाहर होगा नहीं दिखेंगे.
टेबल पे क्लिक करेंगे तभी दिखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर है ऑप्शन में चेंज डेटा सोर्स, चेंज डेटा सोर्स, तो क्लिक करेंगे चेंज डेटा सोर्स पर। चेंज डेटा सोर्स, currently my data is this thing, I want to expand it further up to this, मैंने शिफ्ट के साथ एरो की से एक और कॉलम आगे कर दिया और इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर एज आ गया है।